इस वीडियो में मज़मून हबल को पढ़ा जाएगा। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मज़मून इल्म फ़ल्कियात के मुतालिक है। अब की बार इस मज़मून को इस तरह से पढ़ा जाएगा कि हर एक पैराग्राफ को अंग्रेज़ी में पढ़ लेने के बाद उसका मुख्तसर ख़ुलासा उर्दू में बयान किया जाएगा। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ साथ पढ़िए। Look at the night sky and you see primarily darkness. A vast multitude of glittering sparks drift over our heads, scattered across the sky. Our gaze registers their beauty but little else. Our vision cannot bring these dazzling pinpoints into focus. Observe their true nature. To our eyes, they are mysteries. जब हम रात को नज़र उठाकर आसमान की जानिब देखते हैं तो हमें जगह जगह छोटी छोटी जगमगाती हुई रोशनियाँ सी दिखाई देती हैं जिन्हें हम बगौर नहीं देख सकते, और ये हमारी आंखों के लिए एक पुरस्रार मुअम्मा है। यानी जो असल हकीकत या राज इन रोशनियों के पीछे छुपा है, हमारी आंखें उन्हें उस राज को नहीं देख सकती। आगे पढ़ते हैं। Humanity has sought to move beyond the limited vision of biology since the days of Galileo. Telescopes have brought the heavens to earth, exposed the distant treasure of the universe. माफ कीजिएगा, exposed the distant treasures of the universe, revealed countless galaxies cloaked within the apparent darkness. And perhaps no telescope has done so much to bring the wonder and reality of the universe home as the Hubble Space Telescope. तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि गो के गैलीलियो नामी साइंसदान ने जब से वो टेलीस्कोप इजाद की थी, यानी एक तरह की दूरबीन की जिसकी मदद से खला में चीज़ों को देखा जा सकता है, तब से कायनात के बहुत से ख़जाने और बहुत सी कहकशाएँ हमें देखने को मिली। लेकिन जो कमाल हबल स्पेस नामी टेलीस्कोप या दूरबीन ने किया है वो इससे पहले किसी टेलीस्कोप ने नहीं किया। यानी अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात की हकीकत को जानने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा मदद की है। आगे पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेलीस्कोप इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ was first mentioned in a science book by Arthur C. Clarke. This telescope would peer at the universe from well above the interference of the Earth's ever turbulent atmosphere, which relentlessly blurs the view in ground based telescopes and makes stars twinkle. Ahead of his time, Clarke outlined the advantages of an orbiting telescope compared with a telescope that might at some future point be installed on the moon's surface, as had been suggested decades earlier. Even the moon's extremely tenuous atmosphere might affect certain delicate observations, he wrote. An observatory in space would be able to survey the complete sphere of the sky. खला में ज़मीन के गिर्द चक्कर काटती हुई टेलीस्कोप का जो तस्वर है वो सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने पेश किया अपनी किताब में। उसके तस्वुर के मुताबिक ये एक ऐसी टेलीस्कोप होनी थी जो कि आसानी के साथ और बड़ी सफाई के साथ खला में मौजूद चीज़ों को देख सकेगी और ज़मीन की फ़ज़ा में मौजूद कोई भी चीज़ उसके सामने रुकावट नहीं बन सकेगी, जैसा कि वो खला में मौजूद होगी। वक्त से बहुत पहले ही क्लार्क ने खला में चक्कर काटने वाली इस टेलीस्कोप के बहुत से फ़वाइद भी बताए और इसका मवाजना उस ख़याल से भी किया जो कि उस ज़माने में ये तसव्वुर किया जाता था कि अगर टेलीस्कोप जो है उसे चाँद पर नस्ब कर दिया जाए, लेकिन वो इसके भी ख़िलाफ़ था और उसने यही तजवीज़ पेश की थी कि वहाँ भी जो चाँद की खला है वो उसमें जो फ़िज़ा में जो मौजूद चीज़ें हैं वो रुकावट बन सकती हैं उस टेलीस्कोप के रास्ते में। लिहाजा
खला में गर्दिश करती हुई टेलीस्कोप ही इस मसले का हल है। आगे पढ़ते हैं। Today the orbiting telescope Clark envisioned is known as the Hubble Space Telescope, and it has been in service since 1990. Before Hubble was launched into orbit around Earth in 1990, there was lots of scientific discussion about what a space telescope might find. The top to-do list items for Hubble were to measure the expansion rate of the universe, to find distant galaxies, and to determine the chemical content of the space between the galaxies. But everyone expected Hubble's most important discoveries would provide answers to questions that astronomers do not know how to ask and find objects that were not yet even conceived. क्लार्क ने जिस टेलीस्कोप का तस्वर किया था वो हबल स्पेस टेलीस्कोप के नाम से अब मौजूद है और 1990 से वो काम कर रही है। हबल टेलीस्कोप के आगाज़ से पहले बहुत सी साइंसी गुफ्तगू और बहस इस बात पर होती थी कि इसकी मदद से क्या कुछ जाना जा सकेगा। मिसाल के तौर पर कायनात कितनी तेज़ी के साथ फैल रही है, उसकी शरह क्या है, दूर की जो कहकशाएं हैं उनके मुतालिक जानना। इसके अलावा कहकशाओं के दरमियान मौजूद जो खला है उसका कीमियाई मवाद जो है वो किस किस्म का है। लेकिन इसके बावजूद सब इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि हबल की मदद से वो जवाबात भी जाने जा सकेंगे कि जिनसे मुतालिक सवाल पूछने का ढंग माहिर फल्कियात को नहीं आता, और उन चीज़ों के बारे में भी जाना जा सकेगा कि जिनका अभी तसव्वुर ही नहीं किया गया। आगे पढ़ते हैं। Still no one imagined that Hubble photographs of deep space would be so utterly jaw-droppingly beautiful, or that the pictures would have a purely visceral appeal to an entire generation, making Hubble a household word synonymous with spectacular images of the cosmos. माफ कीजिएगा, images of the cosmos। फिर भी किसी ने भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि हबल की मदद से कायनात की गहराइयों की जो तस्वीर सामने आएंगी वो इस कदर हैरान कुन और ख़ूबसूरत होंगी और इस कदर पुरकशिश होंगी कि पूरी एक नस्ल को मुतासर करेंगी, और फिर हबल जो है उसका नाम घर घर जाना जाएगा कायनात की शानदार तस्वीर के हवाले से। आगे पढ़ते हैं। हबल, अ जॉइंट प्रोजेक्ट of NASA and the European Space Agency, orbits Earth 353 miles, 569 kilometers above the planet's surface. Its position allows it to circle free of Earth's atmosphere, which distorts and blocks light from the cosmos. This gives Hubble a pristine view typically unmatchable by ground-based telescopes. If the man's eye was as sensitive as Hubble's, he could look from Islamabad and see the glow of a pair of fireflies in London. If the fireflies were 6 feet apart, he could resolve that there were two of them side by side. Hubble orbits Earth, moving at a speed of about 5 miles per second, 8 kilometers per second, fast enough to travel from Chitral to Karachi in about 3 minutes. During the course of a year, Hubble circles Earth over 5,000 times. As the telescope whips around Earth once every 97 minutes, it collects light, much more light than human eyes can hope to capture on their own. Light that reveals everything from the nature of storms on Jupiter to some of the most distant galaxies in the universe. हबल, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मुश्तरका मंसूबा था, और यहाँ फासला भी बताया गया है
कि वो ज़मीन से कितने फासले पर गर्दिश करती है। ज़मीन की फ़िज़ा के अंदर मौजूद ऐसी चीज़ें जो कि उसके लिए रुकावट बन सकती हैं, वो वहाँ उसके लिए रुकावट नहीं बनती। इस तरह से हबल के ज़रिए कायनात का किया जाने वाला जो नज़ारा है या जो तस्वीर वगैरह खींची जाती हैं वो बहुत ही साफ़ होती हैं कि ज़मीन पर मौजूद जो दूसरी टेलीस्कोप्स हैं वो कभी भी हबल का मुकाबला नहीं कर सकती। हत्ता कि अगर इंसानी आंख जो है वो इस कदर साफ तौर पर देख सके जैसा कि हबल के ज़रिए से देखा जा सकता है, तो एक शख्स जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हो वो उन दो जुगनुओं की रोशनी तक देख सकता है जो कि लंदन में मौजूद हों। और अगर वो जुगनू आपस में 6 फुट की दूरी पर हों तो यहाँ तक बता सकता है कि वो दोनों यानी वो तादाद में दो दो हैं और साथ साथ मौजूद हैं। और फिर यहाँ हबल की स्पीड से मुतालिक बताया गया है कि किस तेज़ी से वो चल रही है, और वो इस कदर तेज़ स्पीड है कि 3 मिनट में चित्राल से कराची तक पहुंचा जा सकता है। एक साल के अंदर हबल ज़मीन के 5,000 चक्कर काटती है। इसका ज़मीन के गिर्द एक चक्कर 97 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। हबल के अंदर इंसानी आंख के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा रोशनी समो लेने की ताकत होती है। इस रोशनी की मदद से यहाँ तक जाना जा सकता है कि मुश्तरी पर जो तूफ़ान आ रहा है वो किस किस्म का है, और कायनात में मौजूद सबसे दूर दराज तरीन कहकशाओं के मुतालिक भी जाना जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। हबल जॉइंट माफ कीजिएगा हबल सुपरविजन हैज शोन अस प्लेसेस इन द cosmos that no generation of humans before us has ever seen. The Hubble images have unveiled that beyond the starry sky we see on a clear night, there is another universe, an undiscovered country of discordant objects, violent explosions, and cataclysmic collisions. Galaxies plow into one another, stars erupt from firestorms of gas and dust and light. Newly forming stars shoot out saber like jets of gas as birth announcements to the universe. All this drama plays out against a pitch black backdrop that is unimaginably infinite. हबल के देखने की बाकमाल ताकत ने उन जगहों को भी दिखा दिया है जो कि इससे पहले किसी इंसानी नस्ल ने नहीं देखी थीं। हबल ने यह हकीकत बेनकाब की है कि जब हम सितारों भरे आसमान को देखते हैं तो महज वो सितारों भरा आसमान ही नहीं होता, बल्कि उससे परे एक और दुनिया है जो कि अभी दरियाफ्त नहीं हुई, जिसमें बहुत कुछ अजीबो गरीब हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के धमाके हो रहे हैं, कहकशाएं आपस में टकरा रही हैं, आग के तूफान, गैस, गर्द और रोशनी में से नए सितारे उभर रहे हैं। नए उभरने वाले सितारों में से किरणें, रोशनी की जो किरणें हैं इस तरह से फूट रही हैं गोया वो अपने पैदा होने का ऐलान कर रहे हैं कि अब हम भी इस कायनात का हिस्सा हैं। और इस सब ड्रामे के पस मंज़र में काला स्याह अंधेरा है जो हमारे तसव्वुर से भी बढ़कर लामहदूद है, यानी जिसकी हद का अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। आगे पढ़ते हैं। A single Hubble snapshot can portray the universe as awesome, mysterious and breathtaking, and at the same time chaotic, overwhelming, and foreboding. The story that Hubble tells about the universe knows no national, political, or ideological boundaries. The images are so overpowering and humbling that they have touched people of all ages. These pictures are a reminder that we inhabit a tiny planet in a vast universe with many remaining unknowns. हबल से ली गई एक ही तस्वीर के अंदर कायनात पुरस्रार भी मालूम होती है, खूबसूरत भी, और अफरा तफरी या हलचल से भरपूर भी। हबल के ज़रिए से पहुंचने वाली कहानी में किसी किस्म का कोई सियासी या कौमी रंग मौजूद नहीं है। हर उम्र का शख्स इसकी तस्वीर से मुतासर होता है, और ये भी पता चलता है कि बाकी कायनात के मुकाबले में हम कितने छोटे से एक सैयारे पर मौजूद हैं। आगे पढ़ते हैं। Since its launch in 1990, the 12-ton bus-sized
Hubble telescope has made more than 1 million observations and looked at over 38,000 celestial objects. The Hubble archives are filled with more than half a million images. The amount of astronomical data collected is equivalent to about 50 million books, or 5 times the printed collection of the US Library of Congress. माफ कीजिएगा, इस लफ्ज़ को डेटा पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ तारीख़ बताई गई है जब हबल का इस्तेमाल शुरू हुआ, इसके साइज़ से मुतालिक बताया जा रहा है, फिर इसके अलावा कितने ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ें वगैरह जो हैं वो ये अब तक देख चुकी है, कई मिलियन तस्वीर अब तक जमा कर चुकी है। और इसके अलावा एक मवाजना सा दिया गया है कि अब तक जो मवाद इसने जमा किया है वो 50 मिलियन किताबों के बराबर है। यानी अमेरिका की कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है, कुतुब खाना जो है, उसमें मौजूद जितनी भी किताबें हैं, अगर उन्हें 5 मरतबा छापा जाए तो ये उसके बराबर है। आगे पढ़ते हैं। इन 1983 NASA named the telescope after the early 20th century American astronomer Edwin P. Hubble, 1889 to 1953, who is credited with the 1920s discovery that galaxies are huge remote systems of billions of stars. The most powerful space camera ever built was installed on Hubble in 2009, along with many other fixes, and Hubble was now performing at a higher level than ever before. नासा ने हबल नामी एक साइंसदान के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा था, जिसने कहकशाओं के मुतालिक दरियाफ्त किया था कि वो बहुत यानी बेशुमार तादाद में जो सितारे होते हैं उनका एक झुरमुट सा होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन कैमरा हबल पर नस्ब किया गया था, जिसकी वजह से उसकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आई थी। आगे पढ़ते हैं। When we look at stars, we look at history. The light that arrived to our location from the farthest objects in the universe is light that left those objects billions of years ago, so we see them as they appeared long ago. The most distant galaxies look strange, smaller, irregular, lacking clearly defined shapes. No telescope before Hubble had the resolution to see these distant galaxies. जब हम सितारों को देख रहे होते हैं, दरअसल हम तारीख को देख रहे होते हैं। दूर दराज सितारों से जो रोशनी जो है जो हम तक पहुंचती है, वो दरअसल कई अरब साल पहले उन सितारों से खारिज हुई होती है, तो हमें वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वो बहुत अरसा पहले दिखाई देते थे। दूर की कहकशाएं अजीबो गरीब सी दिखाई देती हैं। हबल से पहले कोई भी टेलीस्कोप या दूरबीन इतनी ताकतवर नहीं थी कि इन दूर की कहकशाओं का नज़ारा दिखा सके। माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक प्रिंटिंग एरर है। ये पहले दो अल्फाज जो हैं ये इस बाकी के जुमले का हिस्सा हैं, तो चलिए मिलकर इसे पढ़ते हैं। Astronomers focused Hubble on what appeared to be a nearly empty patch of sky for 10 days. The results contained 10,000 galaxies at various stages of evolution and covers a patch of sky smaller than the size of a pinhead held at arm's length. To photograph the entire sky in this detail would require 13 million Hubble images with comparable exposure. The stunning image was called the Hubble Deep Field. 10 रोज तक जब हबल को आसमान में नस्ब किया गया, उसके बाद जो नताइज सामने आए उनके मुताबिक 10,000 कहकशाएं देखी गईं, जो कि अगर इंसानी आंख जो है उससे अगर देखा जाए तो महज एक सुई के सर के बराबर दिखाई देती थी, जो कि एक बाजू की दूरी पर हो। पूरे आसमान की तस्वीर लेने के लिए 13 मिलियन हबल की जो तस्वीर हैं वो दरकार थी, और पहली बार इस तरह से सामने आने वाली ये जो तस्वीर थी, इन्हें हबल डीप फील्ड का नाम दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द cosmos finally came into focus in the late 1990s and early into the first decade of the 21st century. The part of the universe with which we are most familiar, that is planets, moons, stars, nebulas, and galaxies, accounts for less than 1% of the universe's total contents. Non-luminous matter, mostly hydrogen, dispersed throughout space is about 3%,
while the rest is the largely mysterious dark matter and the completely mysterious dark energy. कायनात किन चीज़ों का मुरक्कब है, इसके मुतालिक 1990 की का जो आखिरी अरसा था और 21वीं सदी के जो शुरू के 10 साल थे उनमें पता लगाया गया। दरअसल ये जो हम आम तौर से सैयारे, चाँद, सितारे वगैरह देखते हैं या कहकशाएं जो हमें ज़मीन से दिखाई देती हैं, ये महज सिर्फ 1% हिस्सा है कायनात का। इसके अलावा हाइड्रोजन की तरह से कुछ ऐसा मादा है जो कि रोशन नहीं है, जो 3% बनता है, जबकि बाकी जो है इस कायनात के अंदर वो एक पुरस्रार स्याह मादा है और मुकम्मल तौर पर पुरस्रार स्याह ताकत है या तवानाई है। Our universe started with a bang and has been expanding ever since, the space between galaxies increasing with time. The data received declared that the universe wasn't slowing down at all, as was previously thought, rather, it was speeding up as though something were propelling it, driving its expansion faster and faster. हमारी कायनात का आगाज़ एक धमाके से हुआ था और तब से लेकर अब तक वो फैलती ही चली जा रही है, और जो मवाद सामने आया है उसकी मदद से ये पता चलता है कि कायनात जो है वो आहिस्ता होने के बजाय मज़ीद तेज़ी से फैल रही है, गोया कोई ताकत उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो, यानी कायनात के फैलने के अमल में मज़ीद तेज़ी आ रही है। Hubble has thoroughly studied stars. The closest star to our Earth is the Sun. It is considered typical of middle-aged stars formed from a collapsed cloud of gas and dust. Stars are born in clouds of gas and dust. One such stellar nursery is the Orion Nebula, an enormous cloud of gas and dust many light years across. The turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots. These knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction As it collapses, pressure from gravity causes the material at the center to heat up, creating a protostar. One day, this core becomes hot enough to ignite fusion and a star is born. Not all the material in the collapsing cloud ends up as part of a star. The remaining dust can become planets, asteroids, or comets, or it may remain as dust. तो अब यहाँ सूरज और मुख्तलिफ सितारों के बनने के अमल को तफसील से बताया गया है, किस तरह से सितारे जो हैं गर्द और गैस जो है उसके बादल या गुबार से नमूदार होते हैं, जैसे कि एक ओरियन नेबुला नामी इसी तरह का सिलसिला है जिसमें से मुमकिन है कि अनकरीब कोई ना कोई सितारा नमूदार हो। इस तरह के गुबार या बादल के अंदर जो सबसे ज़्यादा हलचल वाली जगह होती हैं उन्हें नॉट्स कहा जाता है। इन नॉट्स की कशिश शकल की वजह से गैस और गर्द जो है वो सिकुड़ने लगते हैं और बिलाखिर कशिश शकल की ताकत से इस इलाके के दरमियान में बहुत ज़्यादा हिद्दत या गर्माइश पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में अव्वल या पहला सितारा जो है वो नमूदार होता है या पैदा होता है, और बिल आखिर उसके बीचों बीच दरमियान का जो हिस्सा होता है वो इस कदर गर्म हो जाता है और फिर भड़क कर जल उठता है और पिघलने से फिर एक यानी उस मवाद के पिघलने से फिर एक सितारा जो है बिल आखिर पूरी तरह से नमूदार हो जाता है या बन जाता है। सितारे के बनने के अमल में सारा मवाद इस्तेमाल नहीं होता, जो कुछ बच जाता है वो फिर यानी बचा खुचा जो मवाद है वो फिर सैयारों, बड़ी बड़ी चट्टानों और दुमदार सितारों की शक्ल इख्तियार कर लेता है या गर्द की सूरत में ही रहता है। The chemical makeup of stars revealed through spectroscopy depends on the material in which they originate. In the early universe, stars were formed from matter that lacked most elements except for hydrogen and helium. The other chemical elements have been and still are being created
in the interior of stars through nuclear fusion processes. That new material is eventually recycled into subsequent generations of stars and planets. मकनातीसियत के अमल के ज़रिए से सितारों के अंदर मौजूद जो कीमियाई मवाद है उसके मतलब भी जाना गया है कि जिस तरह के मवाद से वो सितारा बनता है वही मवाद उसी तरह का मवाद उसके अंदर पाया जाता है। शुरू में बनने वाले जो सितारे थे उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो अनासर हैं उनकी कमी पाई जाती थी, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादातर उनमें पाई जाती थी। जौहरी इंशकाक या जौहरी मिलाप जो होता है, ये जो तरह का कीमियाई अमल होता है सितारों के अंदर, इसकी वजह से कुछ और नए किस्म के जो मवाद हैं, केमिकल हैं, वो भी पैदा हो रहे हैं और फिर ये नया पैदा होने वाला मवाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नए बनने वाले सितारों और सैयारों में मुंतकिल होता रहता है। मज़मून के बकिया हिस्से को अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।